قدیم زمانے کی بات ہے جب نہ بجلی ہوا کرتی تھی، نہ مشینیں، نہ بازاروں کی چمک دمک اور نہ ہی لوگوں میں آج جیسا جا و جلال۔ تب انسان زمین سے رزق تلاش کرتا تھا، دریا سے پانی اور آسمان سے رحمت۔ اسی دور کے ایک چھوٹے سے گاؤں نور آباد میں ایک غریب کسان جابر اپنی بیوی ہاجرہ اور دو چھوٹے بچوں زید اور زینب کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی جھونپڑی کچے گارے اور گھاس پھوس سے بنی تھی، چھت سے بارش کے پانی کے قطرے ٹپکتے تو زمین پر رکھے پرانے برتنوں میں جمع ہو جاتے۔ جابر کی زمین بنجر ہو چکی تھی، کھیتوں میں کھاد نہ تھی، نہ پانی اور نہ کوئی ذریعہ آمدن۔ گاؤں میں قحط نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سورج کی تپش اتنی شدید ہوتی کہ زمین سے بھاپ اٹھتی اور کھالیاں خشک ہو چکی تھیں۔ دن میں ہوا رک جاتی اور رات کو بچے بھوک سے سسکیاں لیتے۔ ہاجرہ اکثر راتوں کو جاگتی، بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتی اور آہستہ آہستہ آنسو بہاتی۔ ایک رات جب زید نے بھوک کے مارے ماں کی گود میں بے ہوشی کی حالت اختیار کر لی تو جابر نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے پرانے کپڑوں میں لپٹے وجود کو اٹھایا اور بیوی سے کہا، ہاجرہ، میں طلوع آفتاب سے پہلے اس دیس کو چھوڑ کر نکل جاؤں گا۔ شاید کسی اور بستی میں رزق حلال میرا منتظر ہو۔ صبح ہونے سے پہلے جابر نے کچھ خشک روٹیاں، تھوڑا سا پانی اور اپنے باپ کا دیا ہوا خنجر باندھا اور بچوں کو چوما۔ بیوی سے وعدہ کیا کہ جب تک رزق کا دروازہ نہ کھلے واپس نہ آئے گا۔ ریت اور پتھروں سے بھرے راستے پر نکل پڑا۔ راستے میں اسے کئی قافلے ملے، کچھ تاجر، کچھ مسافر، لیکن سب کے دلوں میں خود غرضی کی دیواریں تھیں۔ جابر نے ہر کسی سے مزدوری مانگی، محنت کی درخواست کی، لیکن سونے کے خریدار، محنت کی قدر کرنے والے نہ ملے۔ ایک دن جب وہ پیاس سے نڈھال، جسم جھلسا ہوا، ایک چٹان کے سائے تلے بے ہوش پڑا تھا، ایک سفید پوش درویش نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا، چہرے پر نور اور آنکھوں میں عجیب سکون۔ اس نے جابر کو پانی پلایا، ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے مسافر، یاد رکھ، جو رزق تلاش کر رہا ہے وہ صرف پیٹ کے لیے نہیں، دل اور نیت کے لیے بھی ہے۔ تیرا راستہ طویل ہے، لیکن اگر نیت سچی ہے تو منزل دور نہیں۔ جابر نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور اگلے دن سفر دوبارہ شروع کیا۔ کئی دن گزر گئے، وہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرا، ریگستانوں کی خاک چھانی، وادیوں میں راتیں گزارے۔ ایک دن وہ فجر نگر نامی بستی میں پہنچا، جہاں کھیت ہرے بھرے، دریا پانی سے لبریز اور لوگ ہنستے مسکراتے تھے۔ جابر نے یہاں ایک زمیندار سے کام مانگا، اس نے اسے زمین پر مزدوری دے دی۔ جابر روزانہ ہل چلاتا، بیج بوتا، پانی دیتا اور شام کو سوکھی روٹی کھا کر سو جاتا۔ کئی ہفتے ایسے ہی گزرے۔ اس کی محنت سب کو نظر آنے لگی، لیکن ایک دن اس نے دیکھا کہ زمیندار مزدوروں کی مزدوری میں کمی کرتا ہے، ان کے حصے کا اناج خود رکھتا ہے۔ جابر نے اعتراض کیا تو زمیندار نے دھمکی دی، اگر بولے گا تو تیری نوکری چلی جائے گی۔ جابر نے فیصلہ کیا کہ وہ ظلم کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس نے کام چھوڑا اور اگلے دن دوبارہ سفر شروع کیا۔ اس بار وہ پہاڑی علاقے کی طرف بڑھا، جہاں ایک پرانی خانقاہ ملی جس میں درویش، فقی اور علم کے متلاشی نوجوان رہتے تھے۔ جابر نے صفائی، پانی بھرنے اور دیگر کاموں کی پیشکش کی۔ بزرگ شیخ نے اس کی حالت دیکھ کر اسے جگہ دی۔ یہاں اسے کھانا، رہائش اور روحانی سکون ملا۔ شیخ نے ایک دن پوچھا، اے جابر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جابر نے کہا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ دوں، ایسا رزق جو کسی کے حق میں کمی نہ کرے، جو جھوٹ، سود اور ظلم سے آلودہ نہ ہو۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، یہی تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ جابر نے خانقاہ میں مہینوں گزارے۔ اس دوران ایک دن کچھ ڈاکو خانقاہ پر حملہ آور ہوئے۔ وہ قیمتی کتب اور سامان لوٹنا چاہتے تھے۔ جابر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کا سامنا کیا، خنجر سے ایک کو زخمی کیا، باقی بھاگ گئے۔ سب نے اس کی بہادری کی داد دی۔ شیخ نے اسے گلے لگایا اور کہا، تم نے اپنے رزق کی قیمت اپنی جان سے ادا کی، اب اللہ تمہیں نوازے گا۔ جابر نے اگلے دن اجازت لی اور دوبارہ سفر شروع کیا۔
अब इसके दिल में यकीन था, खौफ नहीं। वो एक दिन एक बस्ती सफा नगर को पहुंचा जो खुशहाल और पुरअमन थी। यहाँ के ताजिर नेक और ईमानदार थे। जाबिर ने एक ताजिर से अपनी कहानी बयान की। उसने मुतासिर होकर उसे अपने खजूर के बागात का निगरान बना दिया। जाबिर ने मेहनत, दियानत और सुकून से काम किया। कुछ ही अरसे में बागात में बरकत आ गई। ताजिर ने इसकी तनख्वाह बढ़ा दी और इज्जत दी। अब जाबिर ने कासिद के जरिए हाजरा को पैगाम भेजा, मेरे बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, अल्लाह ने रिस्क अता किया है, अब हम सब एक साथ रहेंगे। चंद हफ्तों बाद हाजरा और बच्चे ऊंट पर सवार बस्ती पहुंचे। जाबिर ने उन्हें देखा तो आंखों से आंसू जारी हो गए। वो सजदे में गिर गया। उसने अपने बच्चों को बाहों में भरा, हाजरा को अपनी मेहनत की दास्तान सुनाई और रात भर शुक्र अदा करता रहा। अब वो बस्ती में रिस्क भी पाता, इज्जत भी और दिल का सुकून भी। मगर अभी कहानी मुकम्मल नहीं हुई थी। असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि जहां रिस्क आता है वहां आजमाइश भी इसके साथ आती है। सफा नगर में जाबिर को वो मकाम मिल गया था जिसके लिए इसने सैकड़ों मील की खाक छानी, प्यासो भूख सही और अपनी जान को खतरे में डाला। अब वो खजूर के बाग का निगरान था। सुबह के वक्त बाग में काम करता, दोपहर को मजदूरों को हिदायत देता, शाम को ताजिर के साथ हिसाब किताब करता और रात को अपने बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुनाता। हाजरा ने भी बस्ती की औरतों में इज्जत कमाई। वो सादगी, सब्र और वकार की मिसाल बन गई। जैद और ज़ैनब ने मकतब जाना शुरू किया और जाबिर की आंखों में पहली बार सुकून का सागर नजर आया। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन जब जाबिर खजूर के दरख्तों का मुआयना कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ फल वक्त से पहले गिर चुके हैं और बाग में पानी कम है। वो फौरन चश्मे की तरफ गया जो बाग को पानी देता था। चश्मे का बहाव कम हो चुका था। अगले दिन पूरे बस्ती में यह खबर फैल गई कि पहाड़ों से आने वाला पानी का मंबा किसी ने बंद कर दिया है। ताजिर परेशान हो गया, बस्ती के लोग फिक्रमंद हो गए। जाबिर ने ताजिर से कहा, मुझे इजाजत दें, मैं खुद पहाड़ों तक जाऊंगा और जांच करूंगा। शायद कोई रास्ता बंद हुआ हो या किसी ने जानबूझकर ये किया हो। ताजिर ने इजाजत दी। जाबिर ने 2 मजदूरों के साथ सफर शुरू किया। पहाड़ के दामन में पहुंचने पर उसे पता चला कि पहाड़ी कबाइल ने चश्मे का रुख मोड़ दिया है ताकि वो अपनी जमीनें सैराब कर सकें। जाबिर ने उनके सरदार से मुलाकात की और बड़े अदब से कहा, हम सफा नगर के बासी हैं, हम आपके दुश्मन नहीं, लेकिन ये पानी सदियों से हमारे खेतों को सैराब करता आया है, हमें महरूम ना करें। सरदार सख्त लहजे में बोला, ये जमीन अब हमारी है, पानी भी हमारा। अगर तुम्हें अपनी बस्ती बचानी है तो सौदा करना होगा। सौदा ये था कि सफा नगर के लोग अपने बागात से हर साल उनको हिस्सा दें, वरना पानी नहीं मिलेगा। जाबिर ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया और कहा, रिस्क भीख आसूद पर नहीं मिलता, अल्लाह का दिया किसी के कब्जे में नहीं। वो वापस लूटा और ताजिर को सारा माजरा बताया। ताजिर ने बस्ती के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। सब ने मशवरा किया कि लड़ाई मुमकिन नहीं, लेकिन गुलामी भी नामंजूर है। जाबिर ने तजवीज दी, चश्मे के अलावा एक और रास्ता है। अगर हम मेहनत करें तो पहाड़ी की दूसरी तरफ एक पुराना नदी का रास्ता है जो बरसों से बंद है, मगर इसे खोलकर नया पानी लाया जा सकता है। सब ने कहा, यह काम नामुमकिन है, सैकड़ों मजदूर, महीनों की खुदाई और इसमें कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। जाबिर ने कहा, हमने अगर हलाल रिस्क को बचाना है तो हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा। अगले दिन से जाबिर ने खुद कुदाल उठाई, नदी के बंद रास्ते पर काम शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता चंद मजदूर शामिल हुए, फिर कुछ नौजवान, फिर कुछ बुजुर्ग भी आ गए। हफ्ते महीनों में बदल गए, हाथ जख्मी, जिस्म थके, लेकिन जाबिर का हौसला न टूटा। हाजिरा रात को इसके हाथों पर मरहम रखती, बच्चे इसे दुआएं देते। एक दिन जब सूरज तुलू हुआ तो नदी का बंद रास्ता टूट गया और पानी सफा नगर की तरफ दौड़ता हुआ आया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जाबिर को गिले लगाया गया, ताजिर ने इसे अपना शरीक कार बना दिया। अब जाबिर सिर्फ निगरान नहीं बल्कि बस्ती के फैसलों में शामिल था।
सफा नगर खुशहाल होता गया। खजूर के फल बाहर की बस्तियों में बेचे जाने लगे। लेकिन दौलत आती है तो आजमाइश भी साथ लाती है। कुछ माह बाद एक नया ताजिर बस्ती में आया। नाम था आसिम। वो जर्क बर्क लिबास पहनता, मीठे बोल बोलता और तेज मुनाफा की बातें करता। उसने बस्ती के कई लोगों को कायल कर लिया कि वो अपना अनाज और खजूर उसके जरिए बेची तो ज्यादा पैसा मिलेगा। जाबिर ने ताजिर को जांचने की कोशिश की। एक दिन इसे मालूम हुआ कि आसिम झूठे तोल का काम करता है, सूदी कर्ज देता है और मजदूरों का इस्तेहसाल करता है। जाबिर ने बस्ती वालों को खबरदार किया, लेकिन आसिम बहुत चालाक था। उसने जाबिर पर इल्जाम लगा दिया कि वो तरक्की का दुश्मन है और लोगों को पैसे से रोक रहा है। कुछ लोग बहक गए और जाबिर की मुखालफत शुरू हो गई। लेकिन जाबिर ने सब्र किया। उसने बस्ती के बड़ों से कहा, मैं अगर गलत हूं तो मुझसे सवाल करो, लेकिन अगर सच बोल रहा हूं तो अल्लाह खुद सच को वाज़े करेगा। फिर एक दिन वो हुआ जो बस्ती के लिए सबक बन गया। आसिम ने एक बड़ी तिजारत में लोगों का माल लिया और रातों रात गायब हो गया। जाबिर ने अपने जखीरे से लोगों को अनाज और खजूर बांटी, उनके घरों को बचाया और साबित कर दिया कि रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, दियानत, कुर्बानी और इखलास भी। अब बस्ती के लोग शर्मिंदा थे। सब ने जाबिर से मुआफी मांगी। ताजिर ने इसे बस्ती का निगरान चुन लिया। जाबिर ने कहा, मैं अमीर या सरदार नहीं, बस एक मेहनत कश हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं खिदमत करता रहूं तो वदा करो कि बस्ती में कभी झूठ, सूद, नाइंसाफी ना होगी। सब ने वदा किया। जाबिर ने एक मकतब बनवाया जहां बच्चों को मेहनत, दियानत और सच्चाई की तालीम दी जाने लगी। उसने बेटी ज़ैनब को इल्म दीन सिखाया, बेटे ज़ैद को खेती बाड़ी और हिसाब किताब। हाजरा अब बस्ती की बुजुर्ग औरतों की रहनुमा बन चुकी थी। सालों बीत गए। जाबिर बूढ़ा हो गया, लेकिन इसका किरदार बस्ती की बुनियाद बन चुका था। एक दिन जब वो अपनी चारपाई पर बैठा था, बच्चों को नसीहत कर रहा था, उसने कहा, मेरे बच्चों, रिस्क हमेशा अल्लाह देता है, मगर वो देखता है कि तुम इसके लिए कितना सब्र करते हो, कितना सच बोलते हो और कितना जुल्म का इनकार करते हो। अगर तुमने हलाल को अपना शियार बनाया तो दुनिया तुम्हें फकीरी में भी बादशाही देगी। फिर वो खामोश हो गया, आंखें बंद की और आखिरी सांस ले लिया। बस्ती वालों ने इसके जनाजे को उठाया, इसके हाथों लगाए गए खजूर के दरख्तों के साए में दफन किया और उसके नाम से मकतब, बाग और मस्जिद को मंसूब किया। यूं एक गरीब जिसने सिर्फ हलाल रिस्क की तलाश की थी, बस्ती का मुहाफिज, उस्ताद और रहबर बन गया। इसकी जिंदगी इस बात का सबूत थी कि असल रिस्क वो होता है जो दिल को सुकून दे और अल्लाह को राजी करे। कहानी खत्म हुई मगर एहसास बाकी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने दिल को कहानियों से जिंदा रखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो अपने एहसासात जरूर शेयर कीजिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए एक नई कहानी का आगाज हो सकता है। सब्सक्राइब करें ताकि अगली दास्तान आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस सफर में हमारे हमसफर बने रहें। क्योंकि हर दिल में एक कहानी छपी होती है, शायद अगली बार वो कहानी आपकी हो।